علیکم ناظرین، پروگرام کاسموپولیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان قرۃ العین غفار۔ ناظرین، وقت کی رفتار بہت تیز ہے اور اس تیز رفتار دور میں حالات سے مکمل واقفیت رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ باخبر انسان ہی حالات کے مطابق درست فیصلے کرتا ہے۔ اور میرے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو پورے ہفتے کی خاص خبریں ملیں، تاکہ آپ کو اپنے گرد و پیش کی معلومات سے بخوبی آگاہی مل سکے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی اس ہفتے کراچی کی خاص خبریں، لیکن پہلے جان لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ وزیر اعظم کی کراچی میں ندی نالوں کی صفائی کے احکامات کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ بھی ایکشن میں آ گئے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی ریلی پر دستی بم حملہ کی تحقیقات جاری۔ دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اداروں نے کھوج لگانا شروع کر دی۔ دوسری جانب کراچی پولیس نے عام شہریوں کو ڈکیت سمجھ کر فائرنگ کر دی، ایک شہری جاں بحق۔ دوسری جانب کراچی میں ایک ماں اپنی ہی بچی کی دشمن بن گئی، بچی کو گھر کی دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ اور سندھ حکومت نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کو خوشخبری سنا دی۔ اور ناظرین، لانگ جمپ کے شوقین 22 سالہ آصف مکسی پر شہرت کی دیوی مہربان ہو گئی۔ کراچی میں مونسون کے چوتھے سپیل کی پیش گوئی پر وفاقی حکومت ایکشن میں آ گئی۔ وزیر اعظم کے احکامات پر NDMA اور FWO نے 5 روز میں 95% نالوں کی صفائی کا کام مکمل کر لیا۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے وزیر اعظم عمران خان کے احکام پر NDMA اور FWO کی کارکردگی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ گجر نالے سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کراچی میں مونسون بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کو از خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ NDMA اور FWO میدان میں ایسے آئے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر نگرانی اس حوالے سے رین ایمرجنسی اجلاس بھی بلا لیا گیا۔ وفاقی حکومت نے بھی بارشوں سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات اٹھائے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ پیکج۔ NDMA اور FWO شہر کراچی کے ندی نالوں کی صفائی کے لیے میدان میں اتر آئے۔ شہر کراچی کے ندی نالوں کی صفائی کے لیے کیا میدان میں آئے؟ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے جمع ہونے والے پانی کو نکالنے کے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ سندھ حکومت KMC کے 35 بڑے نالوں کی صفائی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بارش کے دوران الرٹ رہیں اور پانی نکالنے کے لیے پمپنگ مشینوں اور جنریٹرز کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے صوبائی وزراء کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا اور نکاسی آپ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے دورے کے دوران نالوں پر قائم تجاوزات کا بھی نوٹس لیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان تجاوزات کے پیچھے کون ہے۔ بہت جلد اس حوالے سے حقائق منظر عام پر لائیں گے۔ چند دن پہلے کراچی میں جماعت اسلامی کی ریلی میں دستی بم سے حملہ ہوا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا رہی تھی، لیکن شرپسندوں نے اس ریلی پر دستی بم سے حملہ کر دیا۔ واقعے کی تفصیل کے لیے دیکھیے یہ پیکج۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی۔ جی تو ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور افسوسناک خبر کی طرف۔ نومولود بچے کے حوالے سے اکثر ایسی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں جنہیں سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں پیش آیا جب ایک ماں نے اپنی نومولود بچی کو گھر کی دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ ماں بچوں کا سہارا اور امیدوں کا مرکز ہوتی ہے۔ نومولود بچے ماں کو اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں، کیونکہ ماں ہی انہیں اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنتی ہے۔ لیکن جب ماں ہی اپنے بچے کی دشمن بن جائے تو پھر سارے رشتوں سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے۔ کراچی کے علاقے منظور کالونی میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ایک خاتون نے اپنے نومولود بچی کو اپنے گھر کی دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ موجانہ طور پر بچی کی جان بچ گئی۔ پولیس نے بچی کی والدہ کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ بچی کو ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
नाज़रीन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि सिंध में 26 लाइसेंस ब्रांचों को महदूद पैमाने पर खोलने का फैसला कर लिया गया है। इन लाइसेंसेस ब्रांचेस से लाइसेंस भी बनवाए जा सकेंगे और इनकी तजदीद भी करवाई जा सकेगी। कोरोना की वबा ने जहां दीगर शोबों को मुतासिर किया, वहीं ट्रांसपोर्ट का निजाम भी तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया था। लेकिन अब जिंदगी मामूल पर आती जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले अफराद काफी अरसे से परेशान थे, लेकिन अब सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि कराची समेत सिंध भर में 26 लाइसेंस ब्रांचेस को महदूद पैमाने पर दोबारा खोला जाएगा। इब्तिदाई तौर पर लर्निंग लाइसेंस की तजदीद और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाए जाएंगे। डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस सिंध कमरुज़्ज़मा का इस हवाले से कहना था कि उम्मीदवारों को एक रोज कबल अपना टोकन नंबर लेना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए हासिल किया जा सकेगा। टोकन हासिल करने का वक्त सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। इसके अलावा शहरियों को एसओपीज पर अमल करना होगा, जिसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। हर उम्मीदवार की थर्मल स्कैनिंग होगी। ये एहतियाती इकदामात कोरोना से बचाव के पेश नजर उठाए गए हैं। शहरियों ने इस खबर पर खुशी का इजहार किया है। कहते हैं शोहरत की देवी कब किस पर मेहरबान हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ सिंध के इलाके ठट्ठा से ताल्लुक रखने वाले 22 साला नौजवान आसिफ मक्सी के साथ हुआ है। ये नौजवान देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गया है। क्या है इसकी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। शौक का कोई मोल नहीं, शौक जुनून बन जाए तो फिर कारनामे जन्म लेते हैं। ठट्ठा के रिहायशी 22 साला आसिफ मक्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आसिफ मक्सी मोटरसाइकिलों और नहरों के ऊपर से छलांग लगाने की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे और उनके इसी शौक ने रातों रात उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आसिफ मक्सी ने जब 11 मोटरसाइकिलों के ऊपर से छलांग लगाई तो दुनिया हैरान रह गई। आसिफ मक्सी के इस कारनामे के बाद उन्हें पाक फौज की जानिब से आर्मी के एथलेटिक्स टीम में शामिल कर लिया गया है। आसिफ मक्सी फौज का हिस्सा बनना चाहते थे, ये उनका ख्वाब था और लॉन्ग जंपिंग के शौक ने उनके ख्वाब को भी पूरा कर दिया। जी तो नाज़रीन, ये था कराची का हफ्ते भर का अहवाल। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जैसा कि कश्मीर पर जो कब्ज़ा है भारतीय मोदी सरकार का, उसको 1 साल हो गया है और पाकिस्तान 1 साल पूरे होने पर यौम इस्तेहसाल मना रहा है। इस वक्त बहुत सारी यहाँ पर जो शख्सियात हैं वो मौजूद हैं इस मौके पर। उनसे हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्या अपना जो कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ है और कश्मीर को जैसा कि वो अपना शहरक समझता है, उस हवाले से मौक़िफ़ अपना बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उन तक पहुँचाने में क्या कामयाब हुआ और आइंदा के लिए 1 साल तो पूरा हो गया, आइंदा के लिए कश्मीर को आज़ाद कराने में और उनको उनका हक दिलवाने में पाकिस्तान की क्या काविशें रहेंगी, यही जानते हैं हम इन शख्सियात से। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है और पार्लियामेंट हाउस की जो दरो दीवार हैं वो कश्मीर में पे होने वाले जो मजालिम है उसके हवाले से अक्सबंद जो 3D अक्सबंदी है उस हवाले से की गई है। इस वक्त हमारे साथ शहरियार खान अफरीदी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको पार्लियामेंट हाउस की जो इमारत है उस पर यह अक्सबंदी का ख्याल कैसे आया और उससे क्या इमेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, कैसे हैं आप, खैरियत हैं? ये बताइएगा कि ये आपको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि अमूमन इस मौके पर तकारीर होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट की दीवार को चुना गया इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, पार्लियामान जो है वो किसी भी रियासत की आवाज़ होती है और ये पार्लियामान जो कि पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स का कस्टोडियन है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज ये पूरी दुनिया को कश्मीर में जो हिंदुस्तान के जो मजालिम है मोदी सरकार के 3D के ज़रिए डिजिटल दौर है, नए बयानी के ज़रिए अक़वाम आलम, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दुनिया के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्लियामान से आने वाली हर आवाज़ और बात को ना सिर्फ सीरियस लेते हैं बल्कि उस आवाज़ का हिस्सा बनते हैं। आज पूरी दुनिया में जिस तरह मुख्तलिफ ऐवानों में यानी 3 दफ़ा ये परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में ये कश्मीर कॉज जो है वो उठा और कितने सालों बाद, 55-56 सालों बाद, आज इसी तरह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के हवाले से सोच बदल रही है और ख़ासकर यूएन की जो रिपोर्ट्स हैं और फिर महज़ब दुनिया और ख़ासकर फिर वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, आज हिंदुस्तान को ब्लेम कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो आज हमने आज के दिन के हवाले से ये जितने भी 3D फुटेजेस जा रही हैं, चाहे वो यतीम बच्चों के बारे में हो, पैलेट गन से जो
आंखों से हाथ धो चुके, जो जख्मी हो चुके, जो लोग शहीद हो चुके, जो जेलों में पड़े हैं, वो हीरोज कश्मीर के अपनी यूथ को बताना, ताकि यूथ आवाज बने, कनेक्ट हो। फिर स्टेटलेस 1,20,00,000 ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास शहरियत नहीं है, उनके हवाले से पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज दुनिया को ये बताया जा रहा है कि इंसानियत के हवाले से अक़वाम आलम को सोचना होगा, UN को, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल को, और फिर मुहज़्ज़ब दुनिया को सोचना होगा कि आज मोदी की ये जो इंसानियत सोज मज़ालिम है, इसका रास्ता रोकना है। हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेजिंग करनी है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व, RSS जो इंसानियत सोच, उनका मकसद ही इंसान दुश्मन पॉलिसीज हैं, उनको दुनिया के आगे रखना है। और आज पार्लियामेंट से यही आवाज पूरी दुनिया में जा रही है। आपको क्या लगता है कि अगर ये आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, पहुंच रही है, बहुत से हल्के जो है इस हवाले से उठ भी चुके हैं, लेकिन अगर कोई नताइज नहीं निकलते, कोई अमली इक़दाम नहीं निकलते, तो किस हद तक पाकिस्तान जाएगा कश्मीर को अपने साथ में? देखिए जी, नाउमीदी कुफर और गुनाह है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान जग की जगहसाई इस लेवल पे होगी, वो डिफेंसिव होंगे। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का चेहरा मकरू इसलिए हुआ कि याद रखिए, अगर किसी का कोई नहीं, रब तो होता है, तो हिंदुस्तान एक्सपोज हो रहा है। हम ऑल आउट जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर ने जब नए नक्शे के हवाले से कौम को खिताब करते हुए बताया कि हम हर लेवल पर जाएंगे, हम हिंदुस्तान को एक्सपोज करेंगे। अभी हमने कश्मीरी डायस्पोरा और कश्मीर के जेन्युइन स्टेक होल्डर्स, एकेडेमिया, प्रोफेशनल, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ और पार्लियामेंटेरियन के साथ मुकदमा मुख्तलिफ ऐवानों में लड़ना है। हमें इस्तेसाल जैसे आज मनाया जा रहा है, पूरा 1 साल हो गया है मोदी की इत्तेहा पसंदी को। आप क्या समझते हैं कि जो नक्शे में तब्दीली का ख्याल आज आया हुकूमत को, वो उसके पीछे क्या सोच है, और उसको आप क्या लेके चल रहे हैं कि नक्शे में तब्दीली से क्या हो? यौम इस्तेसाल आज पूरी दुनिया को यौम सियाह ये जो मनाया जा रहा है, ये दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पहले अगर था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, अब इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अब अपने अखलाकी कानूनी हक उन्होंने अपने हाथ से खुद ख़त्म कर दिया है, जब से 370 और 35A अपने आइन से उन्होंने निकाला। देखें जी, कुछ भी किसी भी मुख्तलिफ एंगल पे जाने के बजाय एक चीज़ पे जोर देना है कि हमने रीच आउट करना है, पहुंचना है ऐवानों में, दुनिया के तमाम उन फोरम्स पे कश्मीर का मुकदमा प्रोएक्टिव। और अगर माजी में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ नहीं होगा। अब दुनिया जाग चुकी है, अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, सवालात उठते हैं, यूथ को आपको कन्विंस करना पड़ता है, फिर वो लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनको आपने कन्विंस करना होता है, उनको साथ लेके जाना होता है। इस वक्त हमारे साथ मोहिद यूसुफ साहब भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि यौम इस्तेसाल पे पार्लियामेंट हाउस पे जो 3D जो लाइट्स हैं और खासतौर पे ये जो फिल्मबंदी कराई गई, इसके पीछे मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम मोहिद साहब। मतलब आपका जो आइडिया है 3D लाइट्स का, ये यौम इस्तेसाल को 1 साल पूरा हो गया, इस हवाले से आप लोगों ने 3D लाइट्स का जो लगाई हैं, लेकिन इससे आप क्या इमेज देना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं बैनुल अक़वामी दुनिया को? देखिए, हमारा पैगाम हर जगह एक ही है, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा रहा है और खड़ा है। भारत ने बड़ा मंसूबा बंदी की, वहाँ बताया मकबूजा कश्मीर में लोगों को कि जी वो पाकिस्तान ने तो फैसला कर लिया, ये हो गया, शक व शुबा। अगर कोई इबाहम था तो हमारा जो नक्शा नया आया है उसमें बिल्कुल वाज़े हो गया कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है जम्मू और कश्मीर के तनाज़े पे। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि दुनिया को जो सच है वो पता चले। देखिए, हमारे पास हकीकत है, हमारे पास नैरेटिव जो है वो हकीकत की बुनियाद पे बना हुआ है, दूसरी तरफ झूठ है, मक्कारी है। तो पार्लियामेंट एक सिंबल होता है। ये हमारे स्पीकर साहब, सेनेट चेयरमैन साहब, शहरियार अफरीदी साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, ये सारे मिल के ये जमहूरियत का जो साइन है हमारा, उस पर हम बता रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत और वहाँ क्या। वहाँ आप देखिए पेलेट गन, वहाँ पे वो जो बच्चा जो है अपने नाना की लाश पे बैठा हुआ है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जंगो जदल, बर्बरियत।
ये कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जहाँ पे तमाम मिशंस हैं, एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो यहाँ से गुजरेंगे। दुनिया को ये बात हमने दोबारा बावर कराती रहनी है कि हकीकत क्या है, और अब दुनिया मान रही है बात। जो सरजरिश हो रही है हिंदुस्तान की पिछले साल में, वो कोई छोटी बात नहीं है। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के साथ साथ आपको क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पर बैनुल अक़वामी दुनिया आपका कितना साथ दे रही है, या अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाए तो आपको लगता है कि साथ देगी हमारा? देखिए जी, दो बातें। अगर कोई भी हमारा साथ ना दे तो हम अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि हम मायूस हो जाएं कि दुनिया ने नहीं दिया तो हम बात नहीं कर, ऐसा नहीं होगा। हम असूली मौक़िफ़ पे भी हैं, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे कश्मीरियों के लिए, खटखटाते रहेंगे हमेशा, और जो भी उनको पॉलिटिकल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट चाहिए वो पाकिस्तान से मिलेगी। दूसरी बात ये कि आप दुरुस्त कह रही हैं, वो सपोर्ट जो मैं चाहता हूं या पाकिस्तान चाहता है शायद उस तरह नहीं मिली, लेकिन दुनिया अब अपनी आंखें खोल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगी 72 साल तनाज़ा जो है वो ओवरनाइट तो हल नहीं होगा। बदकिस्मती से साल हो गया इस्तेसाल को, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे इसमें तब्दीली आएगी। आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं? क्या अभी भी पाकिस्तानी हुकूमत और भारतीय हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, 5 अगस्त रिवर्स होगा तो सब कुछ हो सकता है। 5 अगस्त जब आपने शिमला वायलेट कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा को आप मानते नहीं, तो भारत एक रोग स्टेट है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रही है। वहाँ पे आपने हमारा जो नया स्टैंप हमने अनवेल किया, आपने देखा होगा, बिल्कुल साफ दिखा रहा है रियासती दहशतगर्दी हो रही है। बंदूक लेके फौजी खड़ा है हिंदुस्तानी, और नीचे वो अपना बच्चा जो है लाश पे बैठा है अपने। तो देखिए, बात दुनिया को सब समझ आती, मफादात का खेल है, वो भी इंशाल्लाह इतना उनके लिए कॉस्टली हो रहा है हिंदुस्तान को सपोर्ट करना कि उसमें भी आप तब्दीली देखेंगे। मुझे सब कश्मीरी अवाम, आपको क्या लगता है कि उनका क्या ख्यालात हैं, या उनका कोई मैसेज आप तक पहुंचता है, उनकी कोई आपके ख्यालात आप तक पहुंचते हैं कि वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या जितना उन पर जुल्म हो चुका है अब वो थक गए कि किसी तरह से ये बंद हो जाए कत्ल गारत? देखिए, कश्मीरी थकने वाला नहीं है। यही तो भारत का सारा मंसूबा था कि साल गुजरेगा, थक हार के बैठ जाएंगे। आप देखेंगे कि वहाँ क्या रेजिस्टेंस आएगी। कश्मीरी थकने वाला नहीं है। जहाँ तक उनका ताल्लुक है, देखिए उनकी राय का, मैं आपको 2 बातें कह देता हूँ। पहली बात, आप खुद देखिएगा अभी आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान के नक्शे पे क्या आवाज़ आती है, यौम इस्तेहसाल पे क्या आवाज़ आती है, आपको खुद पता चल जाएगा वो कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात, इसी पस मंज़र में 5 अगस्त नक्शा आज़ाद जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से वज़ीर ख़ारजा और मैं, हम खुद जाके मिले हैं पिछले हफ्ते, और वहाँ पे मुकम्मल सपोर्ट पाई है हर एक से। तो ये इससे वाज़ेह हो जाता है कि राय किस तरफ है। कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया गया, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या इमेज देना चाहते हैं हम बाहर? हमारा हदफ श्रीनगर, मंजिल श्रीनगर और रोड का रुख श्रीनगर, और 2 और रोड्स हैं। पहला कदम कब उठाएंगे उनकी तरफ? देखिए, पहला कदम नहीं, बहुत से कदम उठ चुके हैं। आप जिस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं, हमें ये जहन में रखना है कि भारत चाहता है कि हम कोई जज्बाती फैसला करें और फिर दुनिया में जाके वावेला मचाए। हमारी एक पेशेंट पॉलिसी है, लेकिन हदफ वाज़ेह है, और कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से बिल्कुल वाज़ेह है कि हम वहाँ पहुँचेंगे। जिस तरफ भारत चल पड़ा है, कोई रास्ता ही नहीं उनके लिए इससे निकलने का। उस तक हम मोदी की हुकूमत के गिरने तक इंतजार करें कि वो जब तक खत्म नहीं होती? या आपने कुछ सोचा है, कोई लाया अमल है आइंदा के लिए कि मजीद यौम इस्तेहसाल ना मनाएं हम? आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें, हमारी कोशिशें बिल्कुल उसी तरह चल रही हैं। ये मोदी साहब ने जो अपने साथ मामलात किए हैं, यही कश्मीर को उनके शिकंजे से निकालने वाले हैं। हम तो दिन रात लगे हुए हैं। मोदी सरकार आज जाए कल जाए, ये भारत का मसला है, हमारा मसला नहीं है। और इंशाअल्लाह अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में दुनिया भी जागेगी, और ये छोटी छोटी कोशिशें हैं जो आपको पीछे नजर आ रही हैं, और इसी वजह से। बहुत शुक्रिया आपका मोहित साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मोहित यूसुफ साहब मौजूद थे, और बड़ी पॉजिटिव ख्यालात थे इनका यही कहना था कि कश्मीर हर सूरत आज़ाद होगा, और आज़ादी के साथ साथ वो पाकिस्तान का हिस्सा ही बनेगा।
नाज़रीन, आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त कि मैं कॉस्मोपॉलिटन के सेट पे मौजूद नहीं हूं, क्योंकि मैं एक्सप्रेसो के सेट पे मौजूद हूं। और वो क्यों हूं? क्योंकि एक्सप्रेस ला रहा है न्यू मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के नाम से। बड़े बड़े अदीबों और फनकारों का ये कहना है कि ये शो बड़ा मुख्तलिफ होने वाला है। कितना मुख्तलिफ होगा, किस कदर मुख्तलिफ होगा, ये सवालात तो मुझे भी बहुत तंग कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। ये सिर्फ महज बातें हैं, क्या मुख्तलिफ होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको मॉर्निंग शो की टीम से मिलवाते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इमरान हसन हमारे साथ मौजूद हैं और उनका साथ देंगी अर्मिला हसन। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगी हिना नियाजी और वकार मलिक साहब। तो सबसे पहले तो इमरान, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि आप बताइएगा कि बड़ी धूम मची हुई है कि मॉर्निंग शो मुख्तलिफ होने वाला है, तो ऐसा क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आपको वेलकम कि आप हमारे सेट पे तशरीफ लाईं और हमारे शो को इंट्रोड्यूस करवाया, और तमाम व्यूवर्स को भी फॉर्मली इस सेट से वेलकम जो कि हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे होने वाला है। सबसे पहले तो देखें, आपने बहुत सारे मुख्तलिफ टीवी शोज़ देखे हैं, मॉर्निंग शोज़, जिसके अंदर मॉर्निंग पाकिस्तान, जागो पाकिस्तान, मुख्तलिफ इस किस्म के, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इस तरह के नाम। सबसे पहले तो हमारा जो ब्रांड नेम है हमारे शो का, वो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हम कुछ डिफरेंट लेके आ रहे हैं। एक्सप्रेसो इज़ द टाइटल, और इससे पहले कोई ऐसा शो किसी चैनल पर आया नहीं है। दूसरा, जिस तरह की सेगमेंटेशन इस शो के अंदर की गई है, मैं बिल्कुल दावे के साथ इंशाल्लाह इस बात को कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान का अब तक का होने वाला सबसे बड़ा मॉर्निंग शो है, जिसके अंदर जितनी वैरायटी हम अपने व्यूवर्स को देने जा रहे हैं शायद कोई और चैनल नहीं दे रहा। और बाकी अगर मैंने सब कुछ अभी रिवील कर दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे और बताएंगे साथ साथ क्या होना चाहिए। अर्मिला, आप बताएं कि क्या मतलब कौन से सेगमेंट्स होने वाले हैं? क्या बिल्कुल ये पूरा एक पैकेज होने वाला है? अच्छा, ऑब्वियसली वी आर रियली एक्साइटेड कि ये शो एक्सप्रेस लेकर आ रहा है। एक्सप्रेसो इज द ब्रांड नेम बेसिकली। हम इसके लिए सब बहुत पूरी टीम बहुत हमने मॉक्स किए एंड वी वर रेडी टू बी लॉन्च्ड ऑन मंडे, सो इट्स काइंड ऑफ गुड। और सेकेंडली, जिस तरह से आपने पूछा कि सेगमेंट्स किस तरह होंगे, हम लाहौर से समेत तमाम जो शहर है उनकी खूबसूरती, उनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है उस पर डिस्कशन करेंगे। हेल्थ है, फिटनेस है, यानी सुबह सुबह हमें जो मॉर्निंग डोज चाहिए होती है बेसिकली वो सब मिलेगा। और ये टिपिकल तरीके से नहीं करेंगे। हमारा अंदाज, लोगों को जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी टीम हमारी स्ट्रेंथ है। और इसमें अभी दो चेहरे तो आप देख रहे हैं, दो चेहरे आपने इंट्रोड्यूस भी करवाए। कई सरप्राइज फेसेस ऐसे हैं जो कि दे गोना बी अ रियली बिग सरप्राइज एंड एक्सक्लूसिव फेसेस फॉर द पीपल, जो कि कुछ बहुत अरसे से टीवी पे आ नहीं रहे थे, उन्हें हम लेकर आएंगे। और कुछ जो सेगमेंट्स बहुत सारे लोग देखना चाहते थे लेकिन टीवी चैनल्स नहीं लेके आते थे, हम वो दिखाने जा रहे हैं। हिना, आपकी तरफ आऊंगी। आपका क्या इसमें किरदार है? क्या करने वाली हैं आप इसमें? महानूर, इस मॉर्निंग शो में मेरे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसका नाम है मेरा पाकिस्तान, जिसमें हम पाकिस्तान के हेरिटेज को, कल्चर को, हिस्ट्री को डिपिक्ट करेंगे और दिखाएंगे। और ऐसी स्टोरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो आज से पहले ना आपने देखी होंगी ना आपने सुनी होंगी। और वो उन हिस्टोरिकल प्लेसेस से जुड़ी स्टोरीज हैं जो व्यूअर्स जो है वो पहली दफा ही देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। और इसके अलावा कोल्ड किचन का एक सेगमेंट है जिसमें मैं अक्सर कुकिंग करते हुए नजर आऊंगी, स्मूदीज बनाते हुए भी नजर आऊंगी, सैलेड्स भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और बचपन में ऐसा हुआ करता था कि अक्सर मैं खुद से बातें करते हुए कुछ ना कुछ बना रही होती थी और अम्मा अब्बा को लगता था, मतलब अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो साथ साथ बता भी रही होती थी कि अब हम इसमें मसाला डालेंगे, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। और एक टाइम तक अम्मा अब्बा को लगता रहा कि शायद मुझ पे कोई जिन भूत का साया है या सेम है, लेकिन वाकई कुकिंग इज माई पैशन। और बेकिंग का भी बहुत शौक है, तो आपको मैं कुकिंग करते हुए भी नजर आऊंगी, स्मूदीज बनाते हुए भी नजर आऊंगी। अच्छा, वकार साहब आपकी तरफ आएंगे। ये बताइएगा कि सुना है हमने कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ भी इसका हिस्सा है, तो वो कैसे? मतलब देखिए, ये एक सबसे खूबसूरत सेगमेंट ये है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को उनकी जितनी किताबें हैं, उनकी लाइक 70 से ज़्यादा किताबें हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक सेगमेंट के अंदर एक किताब इंट्रोड्यूस करवाएंगे और किताब के अंदर से उनसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछे। जनरली उनसे उनकी शख्सियत के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं या जनरल किताबों के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कभी उनके किताब के अंदर से किसी ने सवाल नहीं पूछे। और ये तो एक हमारे लिए, वैसे भी आपको पता है, फादर ऑफ मॉर्निंग शोज कहते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ को, तो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद और बड़ी एक एजाज की बात है कि तारड़ साहब इस शो का हिस्सा हैं। जब कभी मॉर्निंग ट्रांसमिशन का नाम लिया जाता है तो मेरा दिल धड़कता है, और आप जानते हैं कि क्यों धड़कता है, क्योंकि मेरा भी कुछ
رشتہ ناتا رہا ہے مارننگ ٹرانسمیشن سے. ایکسپریس کی جو مارننگ ٹرانسمیشن شروع ہو رہی بہت ہی میرے پاس سینٹیمنٹل قسم کے جذبات ہیں اور خواہشیں ہیں. میں اپنی مارننگ ٹرانسمیشن میں ہمیشہ ویکلی کتابوں کو انٹروڈیوس کرتا ہوں. تو مجھے امید ہے کیونکہ اس کے جو ورکرز ہیں یا پروڈیوسر کہہ رہے ہیں لوگ ہیں, ان میں مجھے شک ہے کہ کچھ ایلیمنٹ پاکستانیت کا, اس کا کلچر کا, اس کے لٹریچر کا پایا جاتا ہے. میں خواہش کی بات کر رہا تھا کہ کتابوں کی بات ہو, اس ملک کی روایات کی بات ہو, شاعری کی بات ہو, تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور جو ہینا کے ساتھ ایک اور بہت اچھا سیگمنٹ ہے وہ مائنڈ میٹرز کا ہے, اور اس کے لیے جو مجھے جو زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان کی جو 50% آبادی ہے وہ بچہ ہے, یعنی بچے ہیں, اور اس کو میڈیا نظر انداز کرتا ہے. مائنڈ میٹرز میں ہم چائلڈ سائیکالوجی کو بھی لے کے آ رہے ہیں, جنرل سائیکالوجی کو, سوشل ایشوز کو, اور ایکسپریس کا ایک بہت پرانا پروگرام 10 سال سے چل رہا ہے, مختلف اوقات میں چلتا رہا ہے, سفر ہے شرط, ٹریولاگ, تو وہ بھی اس کا حصہ ہوگا. سو آئی ہوپ کہ میرے نہیں خیال کہ اتنا فلیورز جو ہیں وہ آپ کو کسی ایکسپریسو کے علاوہ کہیں کسی جگہ مل سکتے ہیں. اچھا, تو عمران یہ بتائیے گا, ابھی تو آپ لوگ میرا خیال ہے 4 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اینکرز کی تعداد کتنی ہے اس میں؟ اس میں کچھ تو ہم اینکرز جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ریویل کر سکتے ہیں, کچھ نام ہم شاید بتا نہیں سکتے, لیکن اس میں سید وسیع شاہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہماری اور کچھ ساتھی اینکرز ہیں جو ود دا ٹائم ہمیں جوائن کرتی رہیں گی, چونکہ ہم نے ایک تو نارملی ہوتا ہے کہ سیٹس کے اوپر آپ لوگوں کو بریک فاسٹ دکھائے جاتے ہیں یا مختلف ڈشز دکھائی جاتی ہیں. ہم نے کیا کیا کہ ہم مختلف ریسٹورینٹس کے اوپر, مختلف فوڈ پلیسز کے اوپر ارلی مارننگ آپ کو یہ ایفرٹ کر کے ہم لے کے جائیں گے, اور ایکچولی ہم وہ جو ایسنس ہے جو دیسی کھانوں کا ہوتا ہے یا جو مقامی کھانوں کا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. اور ہینا نے جیسے اپنا سیگمنٹ بتایا, ہینا کا سیگمنٹ مجھے ذاتی طور پہ دیکھنے میں اتنا دلچسپ لگ رہا ہے کیونکہ عمومی طور پہ ہم نے جگہ تو بہت سی دیکھی ہیں, لیکن the way we are going to show to the world, I think وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. سو اور وسیع شاہ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا, ڈفرینٹ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کا رہن سہن کیسا ہے, ان کی پرسنل لائف کیسی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم ہم لوگوں کو ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ اور فلیور دے سکیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. اور میرا جیسے ابھی عمران نے بھی کہا کہ جو ہینا کا سیگمنٹ ہے وہ پاکستان پہ ہے کہ اس میں ہسٹری بتائی جائے, تو آپ کی باتوں سے اور یہ سب کچھ جان کے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا شو ہے جس میں ہر طبقے کی بات ہو رہی ہے. اچھا مانوش, جس طرح سے ابھی بہت ساری جگہوں پہ اگر ہم ہسٹوریکل یا ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں تو ہم عام روٹین میں اکثر گزرتے بھی ہیں ان جگہوں سے یا دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی ہسٹوریکل ویلیو نہیں پتا ہوتی, ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا. ہمیں پتا ہے کہ اس جگہ کا نام یہ ہے, فلانی جگہ کا نام یہ ہے, لیکن ہینا کے سیگمنٹ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو ڈیٹیل دے رہی ہوں, بڑے ڈفرینٹ اینگل سے دے رہی ہے. اسی طرح اگر ہم کھانوں کی بات کرتے ہیں جو دیسی کھانے, اب لاہور تو بنانے والے کھانے نہیں, I'm not good at it, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی کھانوں کا ایک کلچر ہے اسپیشلی لاہور میں, وہ اگر ہم دکھانے والے ہیں تو وہ بھی آپ کو صبح صبح ایک آپ کا دل کرے گا, ہمارا سیٹ سے اٹھ کے دل کرے گا کہ ہم باہر جا کے کچھ کھائیں. سو اٹس اے ڈفرنٹ فلیور, اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس میں ہمیں فیڈ بیک بھی انشاءاللہ بہت اچھا ملے, اور کیونکہ پوری ٹیم, پوری ایکسپریس ٹیم کی پوری ایفرٹ شامل ہے کہ وہ اس پہ محنت کر رہی ہے اور سارا کچھ, تو وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. اچھا, تو عمران, وسیع شاہ کی ابھی آپ نے بات کی, تو وہ کون سے سیگمنٹس کرنے والے ہیں؟ وسیع شاہ کا جو سب سے مزے کا مجھے ذاتی طور پہ سیگمنٹ لگ رہا ہے وہ ان کا ایک میرا گھر سیگمنٹ ہے, جس میں وہ مختلف لوگوں کے, مختلف شخصیات کے گھر جا رہے ہیں. عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے کہ لوگوں کو اسٹوڈیوز کے اندر بلایا جاتا ہے, ان کی لائف کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے رہنے کا, رہن سہن کا سٹائل کیا ہے, ان کا گھر کیسا ہے. تو یہ ہم فرسٹ ٹائم شاید ریویل کریں گے. بہت سارے ایسے جو پبلک فگرز ہیں ان کے گھروں پہ جا کے, اور ان کا تعلق صرف شوبز سے نہیں ہوگا, ہر طبقہ فکر کے لوگ جن کو لوگ جاننا چاہتے ہیں. اور وسیع شاہ کا خود ایک بہت بڑا قد ہے, بہت بڑے, وہ بہت بہترین شاعر ہیں اور میزبان بہت اچھے ہیں, اور ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں. سو ہمارے لیے یہ بھی ایک پرائڈ کی بات ہے کہ وہ ہمیں کمپنی کریں گے اس شو کے اندر. تو میرے خیال میں ان پرٹیکولر میں تو اس سیگمنٹ کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں. دین اوور اے کپ آف ٹی ایک سیگمنٹ ہے, میرا خیال ہے میں تو خود بھی یہ باتیں سن کے خود بھی بڑی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں. لیکن صرف ہم کافی نہیں پلا رہے سیٹ کے اوپر, ہم آپ کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں. ہم اوور اے کپ آف ٹی وسیع شاہ کے ساتھ چائے بھی آپ کو پلائیں گے, اور وہ چائے سب سے یادگار کپ آف ٹی ہوگا اس شخص کے لیے, اس شخصیت کے لیے جس کے ساتھ وہ جائیں گے, اور ان کے لیے جو ہمیں دیکھیں گے. میں ہوں عمران حسن, میں ہوں ارملہ حسن, اینڈ ویلکم ٹو ایکسپریسو. اچھا, تو وقار صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. وقار صاحب, یہ بتائیے گا, یہ نام بڑا ڈفرینس ہے ایکسپریسو, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بڑا مختلف سا نام ہے. دیکھیے, وہ مارننگ شوز تو ہر جگہ پہ, جس طرح بھی عمران آپ کو بتا رہے تھے
कि वो डिफरेंट नामों से उस तरह चलता रहा। और ये वाकई मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि एक नाम आप अगर मुख्तलिफ रख भी लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सप्रेसो ने नाम सिर्फ मुख्तलिफ नहीं रखा, आपने जब माशरे में या मीडिया में किताब को बाहर कर दिया, बच्चों को बाहर कर दिया, अच्छा इन तमाम चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट तरीन थी हमारे मुख्तलिफ तबकों के लिए, ये शोबों मुख्तलिफ जो तबके हैं हमारी माशरे के, उन तमाम चीज़ों को हम बीच में लेके आ गए। तो ये बेसिकली मतलब इसमें इस पूरा जो एक्सप्रेसो है इसमें एक्चुअली पाकिस्तान की बात हो रही है और किताब की बात हो रही है, अदब की बात हो रही है, सकाफत की बात हो रही है, लैंडस्केप की बात हो रही है, फैशन की बात हो रही है, मेकअप की बात हो रही है। एग्जैक्टली। देखिए वो पीछे नहीं रही है, उन्होंने कहा है कि भाई औरतों का जो है ना ये सब कुछ होना चाहिए। तो चले बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मॉर्निंग शो की टीम, उम्मीद है कि आप लोगों का ये शो बड़ा अच्छा जाएगा। गुड लक आप लोगों को। और ये जिस सीट पे आप बैठी हैं, दिस इज गोइंग टू बी द रियल हॉट सीट। बहुत सख्त किस्म के पॉलिटिकल क्वेश्चंस करने हमारी शख्सियत से। ये मैंने बात इसलिए बताई कि लोग सिर्फ ये ना समझे कि इसमें सिर्फ हम लाइटर मोड की बातें करेंगे, बड़े हार्ड तो किस्म के टॉपिक्स भी आने मेरा वाले तो हैं। ख्याल है कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस सीट पे बैठी हूँ, पहली दफा इस सीट पे बैठी हूँ। चले जी, बड़ा आप लोग गुड लक आपको, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शो बड़ा अच्छा जाए और पॉजिटिव जो है वो पैगाम जाए लोगों को और लोग देखें। तो जनाब बहुत बेस्ट विशेस और गुड लक एक्सप्रेसो की मॉर्निंग टीम को जो आपके लिए मॉर्निंग शो लेके आ रहे हैं। तो ट्यून करना मत भूलिएगा, 9 से 11 बजे मैं भी ट्यून करना नहीं भूलूंगी। अपनी सुबह को बेहतरीन बनाइए।